পরিবর্তনের বার্তা দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌরগ্রাম্য সভা থেকে দিয়ে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, বাংলা আজ বদল চাইছে। আসানসোলে শিল্প গৌরব ফেরানো, মাফের রাত শেষ করা এবং আসানসোল দুর্গাপুরের মেগা সিটি করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। একই সঙ্গে নারী নিরাপত্তা, অনুপ্রদেশ ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যকে নিশানা করে মোদী জানান, চৌঠা মের পর রাজ্যে আসবে আসল আইনি শাসন। ভোটারদের উদ্দেশ্য তার আহ্বান, নির্ভয় ভোট দিন, এবার পরিবর্তন নিশ্চিত করুন। শিল্পাঞ্চল আসানসোলে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সভা থেকে তিনি স্পষ্ট জানান, এবারের লড়াই কেবল সরকার পরিবর্তনের নয়, বরং বাংলার নিরাপত্তা এবং গৌরব পুনরুদ্ধারের লড়াই। কল্যাণেশ্বরী ও মা ভৌরর বুড়িকে প্রণাম জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণ শুরু করেন। আসানসোলের অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, একসময় আসানসোলের সাইকেল, কাঁচ, অ্যালুমিনিয়াম, কয়লার খনির জন্য সারা দেশ বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আজ সেই চাকা থমকে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে কয়লা ও বালি মাফিয়াদের হাত থেকে এই অঞ্চলকে মুক্ত করা হবে। বাংলাকে উন্নয়নের মূল স্রোতে ফেরাতে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মোদী জানান, ৪৫,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ, গ্যাস পাইপলাইন এবং বন্দে ভারত ট্রেনের সুবিধা নিয়ে বিজেপি এগোচ্ছে। এছাড়া অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে আসানসোল স্টেশনের আধুনিকীকরণ ও ইএসআই হাসপাতালকে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করার কাজ চলছে। সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার ধর্ষকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি সরকার এলে বাংলার মহিলারা সুরক্ষিত ও আত্মনির্ভর হবে। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ও পুষ্টিকরণ নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, পুজো পার্বণে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এবার দেশের পূর্ব সীমান্তকেও পশ্চিমের মতো সুরক্ষিত করা হবে। মালদাহের সাম্প্রতিক ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মোদী অভিযোগ করেন, রাজ্যে জঙ্গলরাজ কায়েম হচ্ছে। চৌঠা মের পর বাংলার বিজেপি সরকার আসার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি হুঙ্কার দেন, এবার গুন্ডাদের হিসেব হবে এবং রাজ্যের কাটমানি খেলা শেষ হবে। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही कट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। जहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह जहां कनेक्टिविटी को
को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहाँ ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है और ऐसे कामों के लंबी है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाई बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। यहाँ पीने के पानी की इतनी परेशानी है, सड़क, पुल और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक और बड़ी चिंता है पॉल्यूशन की। फैक्ट्रियों में उचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह अवैध खनन की वजह से जमीन धंसने की शिकायतें हैं, घरों पर खतरा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार इस इलाके की एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। यहाँ का जोश, नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। इसलिए आसनसोल विमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती, लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कांड जैसी विपक्ष घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। ऐसी अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुविधाएं भी चाहती हैं और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती है। भाइयों
बहनों, महिलाओं को उनके अधिकार देने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है, वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का नाम है, उस पार्टी का नाम है आज नमो ड्रोन दीदी योजना से, लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतर मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रही है। अभी ऐसे कई बड़े काम और होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहनें जितनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी होगी, उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किया, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेखपालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेख के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। इनको झेल लो। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता पे कहते रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का
भरोसा चलेगा। और काट माने खेला जोर लेना, काट माने खेला माफिया देर मेरा, माफिया देर मेरा, माफिया देर मेरा। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देकर आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट बंगाल के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी बनेगा। साथियों, 23 अप्रैल को आप सभी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलना है। आप निर्भय होकर पूरे परिवार के साथ वोट देने जाइए। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इस बार आपका वोट विकास के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट सुरक्षा के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट बंगाल के भविष्य के लिए पड़ेगा। इस बार का आपका वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पड़ने वाला है। और साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं। आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए
लेकिन मेरा मंत्र है सबका हिसाब। सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। ব্যুরো রিপোর্ট রাত 3 নিউজ নেটওয়ার্ক।